students. Welcome to this important lecture of topic vector, and in this lecture we will solve the problems on section formula. Last lecture में हमने section formula देखे थे for MSTCET of the topic vector. उसमें हमने इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, मिड पॉइंट फार्मूला, सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, इसके फॉर्मूले डिस्कस किए और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने डिस्कस किए हैं. सो यूजिंग ऑल दैट फॉर्मूले वी विल सॉल्व द इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फॉर MSTCET ऑन सेक्शन फार्मूला. So see, this is my first problem, and in this problem it is given that if centroid of tetrahedron OABC is 1, 2, -1, तो सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन गिवन है एंड उसके तीन वर्टाइसेस भी दिए हैं ABC. So then we have to find the distance of PABC from origin. if centroid of tetrahedron OABC यानी एक वर्टेक्स की ओरिजिन है. So let the vertices given है, तो एक वर्टेक्स ओरिजिन है 0, 0, 0. Another vertex A has coordinates A, 2, 3. Third vertex is B, whose coordinates are 1, B, 2, and fourth vertex is C, whose coordinates are 2, 1, C. And centroid G of this tetrahedron, centroid के coordinates क्या दिए हैं? 1, 2, -1. So I have to find the distance of point PABC from origin. So it means I have to find the value of A, B and C using the formula for centroid of tetrahedron. Okay, so this is XYZ being the centroid of tetrahedron. So centroid of the tetrahedron का x coordinate क्या होता है? x coordinate उसका फॉर्मूला है x coordinate of the centroid of tetrahedron is x1 plus x2 plus x3 plus x4 by 4. Y coordinate of the centroid of the tetrahedron is given by y1 plus y2 plus y3 plus y4 by 4. And z coordinate of the centroid is given by z1 plus z2 plus z3 plus z4 by 4. तो ये फॉर्मूले हम यूज करेंगे and then we will get the values of ABC. So here x coordinate of the centroid is 1, so which is equal to x1 0, x2 a plus x3 1 plus x4 2. See this x1, x2, x3 and x4 upon 4. Y coordinate of the centroid is 2, so it is given by y1 plus y2 plus y3 plus y4 by 4. And z coordinate of the centroid is -1. See, here is z coordinate, this is y coordinate. So z coordinate is given by z1. So z1 0 plus z2 कितना है 3 plus z3 2 plus z4 कितना है c upon 4. So from this I will get the equation a plus 3 equal to 4. And here b plus 3 equal to 8, c plus 5 equal to -4. Okay, so like this, here a is 1, b is 5, b is 5, b is 5, and c is -4, -5, -9. So like this I have this point P. This point P
ए बी सी हैज कोऑर्डिनेट्स, तो ए की वैल्यू क्या मिली है 1, बी इज 5 और सी कितना है मेरा -9. नाउ डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट पी फ्रॉम ओरिजिन, सो लेंथ ऑफ ओ पी, ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा ए बी सी का, रूट ऑफ a square plus b square plus c square. So this distance will be square root of 1 plus 25 plus 81. So it is square root of 82 plus 25. 82 plus 25 कितना होता है, 82 plus 25. So it is 107. Square root of 107 is the distance of this point P from origin. So this answer second is correct. So this is the question number 1 of this section formula. Now see the question number 2. In this question number 2, what we have given, if two vertices of a triangle are A 314 and B -4 5 -3 and centroid of the triangle be given है, I have to find the third vertex. So I have to find the third vertex of this triangle. So see here, I will draw this triangle. तो इस triangle में मुझे क्या क्या दिया है, let this triangle ABC एक point A vertex के coordinate से 3 1 4, vertex B has coordinates -4 5 -3, this is the vertex C, और ये है मेरा सेंट्रोइड G, और सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स है -1 2 1, and I have to find this third vertex C. So by using centroid formula, centroid का x coordinate -1, centroid का formula क्या है, x equal to x1 plus x2 plus x3 by 3, y coordinate is y1 plus y2 plus y3 by 3, and z coordinate z is given by z1 plus z2 plus z3 by 3. So here centroid का x coordinate तो हमें third vertex find out करने की है. So let this third vertex is x y z. तो देखिए -1, ये सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट -1, x1 3 प्लस x2 -4 प्लस x3 x अपॉन 3. सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट दिख रहा है मुझे 2, y1 is 1 plus y2 is 5 plus y3 is y by 3, and z coordinate of the centroid is -3. So z1 plus z2 plus z3 by 3. So यहाँ से मुझे इक्वेशन मिलेगा x -1 इक्वल टू -3, x -1 इक्वल टू -3, और y plus 6 इक्वल टू 6, and z plus 1 equal to -9. So now I will get this value of x equal to -2, y equal to 0, and z equal to, so z plus 1 equal to -9, तो z होगा मेरा -10. कुछ तो भी यहाँ प्रॉब्लम है. Z coordinate of the centroid कितना है 1, so this is wrong here. Z coordinate of the centroid, देखिए Z coordinate of the centroid क्या है 1, so here Z plus 1 equal to कितना मिलेगा 3. Okay, so this was wrong here. So Z plus 1 equal to 3, तो यहाँ पे Z बनेगा मेरा 3 - 1 2. So therefore third vertex C has coordinates -2 0 2. Okay, -2 0 2 is in the option B. So this was the problem number 2, very easy question of the centroid of the triangle. Okay, now let us solve the next question number 3 of this lecture on section formula. So देखिए, this question is also very important, and in this question I have given this triangle OAB. Triangle OAB दिया है, E is the midpoint of OB,
OB का मिड पॉइंट क्या है? E. D is the point on AB such that AD is to DB 2:1. ओके, OD एंड A intersect at P, तो OP is to PD का रेशो मुझे फाइंड आउट करने का है। तो पहले मैं इसके इस ट्रायंगल की डायग्राम बना लेता हूँ। क्वेश्चन में एक्चुअली दिया क्या है वो मुझे समझ में आएगा। सो लेट दिस इज द ट्रायंगल OAB। OAB ये ट्रायंगल है। O इज ओरिजिन। ओके, अब दिया है E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB। OB का मिड पॉइंट मुझे दिया है E। ओके, and D is the point on AB such that AD is to DB। AD is to DB का रेशो दिया है मुझे 2:1। ओके, अब ये ओरिजिन है, सो लेट OA वेक्टर इज ए वेक्टर। OA वेक्टर position vector of point A with respect to origin O is a vector. So OA vector is a vector, OB vector is B vector। पोजीशन वेक्टर्स कंसिडर करेंगे एंड OD वेक्टर इज D वेक्टर एंड OE वेक्टर इज E वेक्टर। तो इस तरह से ये पोजीशन वेक्टर्स मैंने कंसिडर किए हैं। अब आगे पढ़ेंगे। प्रॉब्लम में दिया है डी इज द ए भी लिया हमने ओडी एंड AE। सो दिस इज AE, this is the segment AE and this is the segment OD intersect at point P, so this is their point of intersection P। ओके, तो यहाँ पे मुझे इज द मिड पॉइंट ऑफ OE दिया है, तो इस OE वेक्टर इज हाफ ऑफ OB वेक्टर में लिख सकता हूँ बिकॉज इज द मिड पॉइंट ऑफ OB। इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, तो OE वेक्टर इज हाफ ऑफ OB वेक्टर, so it is half of OB वेक्टर क्या है? B वेक्टर, और OE वेक्टर क्या है? E वेक्टर। ओके, सो E वेक्टर इज हाफ ऑफ B वेक्टर, तो मुझे B वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं 2E वेक्टर। ओके, नाउ here D divides segment AB internally in the ratio 2:1। सो D पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? 2B वेक्टर। इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, 2B प्लस A वेक्टर अपॉन 2 + 1 क्या होगा? 3। सो यहाँ से मुझे 3D वेक्टर मिलेगा, 2B वेक्टर प्लस A वेक्टर। ओके, सो B वेक्टर इज नाउ B वेक्टर इज 2E वेक्टर। ओके, सो मैं इसमें 3D वेक्टर इज इक्वल टू ये B वेक्टर जो है उसे रिप्लेस कर रहा हूँ 2E वेक्टर से। दिस B वेक्टर इज, तो ये मिलेगा 4E वेक्टर प्लस A वेक्टर। अब मुझे फाइंड आउट करने का है OP इज टू PD। ओके, अब मुझे यहाँ पे देखिए मैं कैसे एडजस्टमेंट करता हूँ। यहाँ पे ये 3D वेक्टर है, सो 3D वेक्टर प्लस मैं इसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 0 वेक्टर, 2 इंटू 0 वेक्टर इज इक्वल टू 4E वेक्टर प्लस A वेक्टर। ऐसे एडजस्टमेंट की है मैंने, और मैं दोनों साइड को 5 से डिवाइड करता हूँ, इसे डिवाइड करता हूँ 3 + 2 से, इसे डिवाइड करता हूँ 4 + 1 से। सो नाउ सी हियर, now these are the position vectors of some such points। उसके दोनों वो पॉइंट के पोजीशन वेक्टर सेम है। सो अगर मैं इससे लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसिडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ये देखिए, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट which divides OD, which divides OD in the ratio
इन द रेशो आप फॉर्मूला देखिए, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स ओडी इन द रेशो 3:2। अब हम इसे अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट which divides AE in the ratio अब AE मैंने ऐसा पढ़ा है तो रेशो अपोजिट साइड से पढ़ेंगे तो ये रेशो हो जाएगा 4:1। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स A in the ratio 4:1 और ये पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स OD in the ratio 2:1। बट इसका मतलब ऐसा एक पॉइंट है कि वो पॉइंट OD और AE को डिवाइड करता है, सो दैट मस्ट बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ OD and AE, but point of intersection of OD and AE is क्या है P, लेकिन OD और AE का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है ये। तो इसका मतलब P पॉइंट OD को 3:2 में डिवाइड करता है और P पॉइंट AE को कौन से रेशो में डिवाइड करता है 4:1। तो ये रेशो 4:1 है और ये OP इज टू PD का रेशो फिर देखिए क्या आएगा 3:2। सो यहाँ से मुझे पता चलता है कि अगर ये this is the point P, so P divides OD, P divides the position vector of a point which divides OD, so ये कौन सा पॉइंट है P पॉइंट। so P divides OD in the ratio 3:2, so therefore OP is to PD, यही पूछा था क्वेश्चन में, OP is to PD का रेशो क्या होगा फिर 3:2। सो दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए मैंने किस तरह से इसको सॉल्व किया है। सो रेशो इज 3:2 and 3:2 is the option C. So this was the question number 3। सेम टाइप का एक क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए इसमें दिया है मुझे D and E divide sides BC and CA of triangle in the ratio 2:3 each, ratio in which point of intersection of AD and B divides AD and B respectively। तो इसे थोड़ा थोड़ा पढ़ के पहले हम डायग्राम बनाते हैं, एक एक चीज अच्छी तरह से समझ लेते हैं। वन बाय वन सेंटेंस पढ़ेंगे, उसको अच्छी तरह से समझ लेंगे। ओके, सो हियर ओके, तो पहले मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ। आई विल ड्रॉ दिस ट्रायंगल, ओके। तो मुझे क्या दिया है, व्हाट आई हैव गिवन, ABC triangle given है। ओके, दिस इज द ट्रायंगल ABC। ओके, D divides BC, in the ratio 2:3। So D divides BC in the ratio 2:3। ओके, तो इस D पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैं लिख लेता हूँ पहले। So this position vector of point D will be 2C plus 3B by 2 plus 3 कितना होगा 5। अब आगे पढ़ते हैं। अब देखें E divides CA, in the ratio, in the same ratio 2:3। So E divides CA in the ratio 2:3। तो यहाँ पे मुझे E पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखने को मिलेगा इंटरनल डिवीजन से।
So that will be equal to 3c plus 2a by 3 plus 2 कितना होगा 5. Okay. Now ratio in which point of intersection of AD and BE. तो ये है AD और BE का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P कंसिडर करते हैं. तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन AD और BE को किस रेशो में डिवाइड करता है. सेम टाइप का क्वेश्चन है. टेकिंग द टेक्स्ट बुक दिस क्वेश्चन इज गिवन एंड ये क्वेश्चन आपको सीईटी में पूछा जा सकता है क्योंकि न्यू टाइप का क्वेश्चन है. तो इस इक्वेशन को देखिए, मैं ऐसा लिखता हूँ 5d वेक्टर इज इक्वल टू 2c वेक्टर प्लस 3b वेक्टर एंड 5e वेक्टर इज इक्वल टू 3c वेक्टर प्लस 2a. ओके. तो मुझे रेशो पूछा है P पॉइंट AD को और P पॉइंट BE को किस रेशो में डिवाइड करेगा. तो इस C वेक्टर का इसमें कुछ भी काम नहीं, तो इन दोनों इक्वेशन से हम C की टर्म कैंसल करते हैं. सो इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से. इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3 से क्योंकि यहाँ पे 6C और आ जाएगा, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से. तो ये इक्वेशन मुझे मिलेगा 15d वेक्टर इक्वल टू 6c वेक्टर प्लस 9b वेक्टर. ओके. और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 10e वेक्टर इक्वल टू 6c वेक्टर प्लस 4a वेक्टर. अब इसमें से मुझे 6c वेक्टर कैंसिल करने का है, तो यहाँ से मुझे 6c वेक्टर की वैल्यू मिलेगी 15d वेक्टर प्लस 9b वेक्टर, और यहाँ से 6c वेक्टर की वैल्यू मिलेगी 10e वेक्टर प्लस 4a. ओके. तो अब मुझे ए और डी वो एक साइड को लाने के हैं. तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 15d वेक्टर माइनस 4a वेक्टर इक्वल टू 10e वेक्टर माइनस 9 वेक्टर. मैंने ऐसा क्यों लिखा है आपके समझ में आया होगा. मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AD और BE फाइंड आउट करने का है, तो इसलिए ए वेक्टर और डी वेक्टर को एक साइड में, ई वेक्टर और बी वेक्टर को एक साइड में मैंने लिया है. So it is 15d वेक्टर माइनस 4a वेक्टर बाय, इसको मैं लिखता हूँ 15 माइनस 4 यानी 11 होगा. ओके. और 15d वेक्टर, सॉरी हियर इज माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन होना चाहिए. दिस इज माइनस साइन एंड यहाँ पे होना चाहिए माइनस साइन. ओके. क्योंकि 6c इक्वल टू 15d माइनस 9 भी आएगा, और यहाँ से 6c इक्वल टू 10e माइनस 4 आएगा. तो ये होगा प्लस 4a और ये होगा प्लस 9b. तो इसे मैं ये 15d प्लस 4a अपॉन 15 प्लस 4 लिखता हूँ डिवाइड बाय 19, और ये 10e प्लस 9b अपॉन 19. तो इसे मैं लिखता हूँ 10 प्लस 9 इक्वल टू लेट p. ओके. सो इट मीन्स p डिवाइड्स, तो ये पोजीशन वेक्टर सेम है. सो दिस मीन्स, इट मीन्स पॉइंट p डिवाइड्स, देखिए पॉइंट p डिवाइड्स AD इन द रेशो. यहाँ से आपको रेशो दिखाई देगा. AD को मैंने ऐसा पढ़ा है, AD उसका रेशो अपोजिट साइड से पढ़ना पड़ेगा 15:4. ओके. अब देखिए सेम पॉइंट B है क्योंकि पोजीशन वेक्टर सेम है दोनों पॉइंट का, तो वो पॉइंट मैंने P कंसिडर किया है. एंड P डिवाइड्स सेम पॉइंट, P डिवाइड्स. अब सेगमेंट देखिए BE, ये BE ऐसा पड़ा है. P डिवाइड्स BE इन द रेशो. अब BE को कौन से रेशो में डिवाइड करेगा, 10:9. ओके. सो दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. यहाँ से मुझे पता चलता है कि उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है AD और BE का, AD और BE को किस रेशो में डिवाइड करता है.
So P divides ED in the ratio 15:4 and P divides BE in the ratio 10:9. So this is the option B. Okay, nice question. तो सीईटी के लिए आप ये किसी एक सेगमेंट का रेशो भी पूछ सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों सेगमेंट्स क्वेश्चन एज इट इज टेक्स्ट बुक से मैंने लिया है और उसे ऑप्शंस दे दिए हैं. सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 4. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे क्या दिया है? व्हाट आई हैव गिवन in this question number 5. What is given here? See, if the points say A 30P, B -1 Q3 and C -330 are collinear, then the ratio in which point C divides segment AB. रेशो पूछा है C पॉइंट AB को किस रेशो में डिवाइड करता है. ओके, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर तो दिए हैं पहले से ही. सो दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर. ओके, सो यहाँ पे मेरा ए पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स 30P, इसमें अननोन भी है. ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -1 Q3. नाउ दिस इज द पॉइंट C whose coordinates are -330. तो मुझे पूछा है सी ए बी को कौन से रेशो में डिवाइड करता है, तो रेशो क्या कंसिडर करना है? K:1. ये इंटरनली भी हो सकता है, एक्सटर्नली भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स ऑन द K. इफ K इज पॉजिटिव C डिवाइड्स AB इंटरनली एंड K इफ नेगेटिव होगा तो C विल डिवाइड AB एक्सटर्नली. तो यहाँ P और Q को वैल्यू से कुछ अब उनको लेने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट गिवन है, यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट गिवन है, यहाँ पे भी x कोऑर्डिनेट गिवन है. तो मैं x कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला इंटरनल डिवीजन का यूज करता हूँ कि अगर मुझे पॉजिटिव मिलता है तो इंटरनल डिवीजन होगा, कि अगर नेगेटिव मिलता है तो एक्सटर्नल डिवीजन होगा. सो सी हाउ C डिवाइड्स AB internally or externally, that depends on this value K. So ratio is K:1. So let C divides segment AB in the ratio K:1. तो मैंने सभी स्टूडेंट्स को मैं बताते रहता हूँ, कभी भी रेशो फाइंड आउट करने का है तो इट इज़ बेटर टू टेक द रेशो K:1. m:2n नहीं लेने का है, क्योंकि उसमें आपको दोनों m n दो अननोन्स फाइंड आउट करने पड़ते हैं. सो K, इट इज़ बेटर टू टेक द रेशो K:1. सो K मीन्स m:2n हो जाता है. सो दिस इज वेरी सिंपल वे टू फाइंड द रेशो. सो C पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? -3. तो ये यहाँ पे बनेगा mx2 k इंटू -1 क्या होगा? -k प्लस 1 इंटू ये x2 कितना होगा? +3 अपॉन m प्लस n क्या होगा? k+1. तो सिंपली k मिल जाएगा, मुझे रेशो मिल जाएगा. p और q की वैल्यू से कुछ लेने देने का नहीं है. सो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करते हैं. -3k -3k इक्वल टू -k+3. ओके, सो ये हो जाएगा -3k + k -2k इक्वल टू 6 और k मिलेगा मुझे -3. तो k नेगेटिव है, तो इसका मतलब C डिवाइड्स AB. अब देखिए k मुझे नेगेटिव मिला है, C डिवाइड्स AB नेगेटिव मिला है, तो मैं लिख सकता हूँ एक्सटर्नली इन द रेशो. अब रेशो क्या होगा? ये है -3:1. तो इसका माइनस साइन एक्सटर्नली रिप्रेजेंट करता है और एक्चुअल रेशो होगा 3:1. So C divides AB externally in the ratio 3:1. So 3:1 is in this option first. Okay, so
बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। पी और क्यू, अगर आपको बोला क्वेश्चन में पी और क्यू फाइंड आउट करो तो कोलिनियर है तो you must find the vector AB and AC. So here AB vector और AC वेक्टर आपको फाइंड आउट करने का है और उनके कंपोनेंट्स प्रोपोर्शन में लेने के बाद आपको P और Q की वैल्यू भी मिल जाएगी। द इन क्वेश्चन आपको पूछा है P और Q फाइंड आउट करो। तो सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसे भी अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, P and Q be the position vectors of the point P and Q with respect to origin O. Okay, mod of P equal to P, mod of Q equal to Q. P, it means P and Q are the magnitudes of the vector P and Q. आगे पढ़ते हैं। R and S divide segment PQ internally and externally in the ratio 2:3 respectively if OR is perpendicular to OS। तो हमें रिलेशन पूछा है। ओके, तो फर्स्ट P R divides PQ। ओके, R divides PQ, वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसको मैं थोड़ा क्वेश्चन को छोटा करता हूँ। ओके, तो देखिए R डिवाइड्स, पहले इसे कॉन्सेंट्रेट करो। R डिवाइड्स PQ internally, R divides PQ internally, R divides PQ internally। ओके, सो PQ को R डिवाइड करता है internally in the ratio 2:3। ओके, तो इस R पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? इंटरनल डिवीजन से 2Q प्लस 3P बाई 2 प्लस 3 कितना होगा? 5। ओके, now see here, S divides, S PQ को एक्सटर्नली डिवाइड करता है। ओके, तो S divides PQ externally in the same ratio 2:3। सो ये मेरा PQ है, PQ और S एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:3। सो S वेक्टर क्या होगा मेरा? 2Q वेक्टर माइनस 3P वेक्टर अपॉन 2 माइनस 3 कितना होगा? -1। ओके, तो इसको एक्सटर्नल डिवीजन फार्मूला यूज किया है बिकॉज यस डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3 एंड R डिवाइड्स PQ इंटरनली इन द रेशियो 2:3। अब देखिए OR इज परपेंडिकुलर टू OS। यहाँ पे वो ओरिजिन दिया है, पोजीशन वेक्टर्स कंसीडर किए विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O। सो इट मीन्स OR वेक्टर इज R वेक्टर and OS वेक्टर इज S वेक्टर and OR is perpendicular to OS दिया है। so it means OR is perpendicular to OS वेक्टर। तो परपेंडिकुलर से डॉट प्रोडक्ट उनका हो जाएगा 0, OS डॉट OR इक्वल टू 0। सो OS OR यानी R वेक्टर, सो इट मीन्स R डॉट S इक्वल टू 0। यहाँ पे मेरा R वेक्टर है 2Q प्लस 3P। सो ये हो गया 3P प्लस 2Q बाय 5 डॉट, और ये मेरा ये वेक्टर है 2Q माइनस 3P बाय -1 इक्वल टू 0। ओके, सो प्रॉब्लम बिकम्स वेरी सिंपल। तो ये बनेगा 6P डॉट Q माइनस 6P डॉट Q कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा 4A प्लस बी ए माइनस बी, 4Q डॉट Q 4Q स्क्वायर माइनस 9P स्क्वायर अपॉन -5 इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे कंडीशन मिलेगी 4Q स्क्वायर इक्वल टू 9P स्क्वायर, 4Q स्क्वायर इक्वल टू 9P स्क्वायर, 4Q स्क्वायर इक्वल टू 9P स्क्वायर। सो 9P स्क्वायर इज 4Q स्क्वायर। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें आपको एक डॉट प्रोडक्ट समझ में आया होगा, ये डॉट प्रोडक्ट आपको समझ में आया होगा। ये होगा 6P डॉट Q
-9 p डॉट पी क्या होता है p स्क्वायर प्लस 4 q डॉट q क्या होगा q स्क्वायर -6 p डॉट q, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से 4q स्क्वायर -9p स्क्वायर मुझे मिलेगा. सो दिस वाज द वेरी नाइस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये हमने देखा है. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. तो इसका भी मैंने आपको फॉर्मूला बोला था, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड मीडियंस. तो ये दो वेक्टर्स हैं j plus k and 3i minus j plus 4k represent two sides AB and AC respectively of triangle ABC. I have to find the length of the median through E. ओके, तो इसका मैंने आपको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बोला है और फिर से मैं आपको इसको रिवाइज करके देता हूँ. इसके पहले का लेक्चर सेक्शन फॉर्मूला मैंने बोला था, इसको आप नोट कीजिए. सो ये वो रिलेशन है, अगर मेरा ट्रायंगल ABC है एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC यानी AD मीडियन है, then I have this relation AB vector plus AC vector is equal to 2 times AD vector. AB vector plus AC vector is equal to 2 times AD vector. So let AB vector is this first, J vector plus K vector and AC vector AB and AC is given. So this vector second is 3i minus J plus 4K. तो यहाँ से मुझे 2 टाइम्स AD वेक्टर मिलेगा. AB प्लस ए सी देखिए, इसकी एडिशन होगी 3i प्लस J माइनस J कैंसिल होगा, 4K प्लस K कितना आएगा 5K वेक्टर. ओके, तो मुझे AD वेक्टर मिलेगा 3/2i वेक्टर प्लस 5/2K वेक्टर एंड आई हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD यानी मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने का है AD वेक्टर का. सो मॉड ऑफ AD वेक्टर इज स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. सो इट इज 9/4, j की टर्म 0 हो जाएगी और ये 25/4. सो इट इज रूट ऑफ 34/2. वेरी सिंपल क्वेश्चन, रूट ऑफ 34/2 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. और इसको आपको फॉर्मूला ध्यान में रखने का है, इफ AD is the median of triangle ABC, then AB plus AC equal to 2 times AD. So this is very important. Okay. तो या तो फिर आप A को ओरिजिन कंसिडर कीजिए, इसका अल्टरनेटिव ऐसा है, A को आप ओरिजिन कंसिडर कीजिए तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 0, 1, 1 और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 3, -1, 4. देन बाय मिड पॉइंट फार्मूला यू find the vertex D and then find the distance of D from origin. तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 7. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 8. ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. सो अ पॉइंट P with position vector, एक पॉइंट P with this position vector, ये पोजिशन वेक्टर दिया है, divides the line joining A and B in the ratio 3:2. तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछिए. सिंपल इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होता है. एंड दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ योर टेक्स्ट बुक, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया है. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. सो तो पहले मैं इस सेगमेंट को ड्रॉ करता हूँ. ओके, सो क्या दिया है क्वेश्चन में, पॉइंट P डिवाइड्स, दिस पॉइंट P डिवाइड्स सेगमेंट AB इन द रेशो 3:2 में डिवाइड करता है. तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है -165. क्वेश्चन में देखिए B मुझे फाइंड आउट करने का है. अब ये P पॉइंट के पोजीशन वेक्टर है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उस पोजीशन वेक्टर को आप देखिए -14/5, 39/5 एंड 28/5 और मुझे B फाइंड आउट करने का है. तो B के कोऑर्डिनेट्स में XYZ कंसिडर करता हूँ.
अब मुझे इंटरनल डिवीजन का एप्लीकेशन यूज करने का है फॉर्मूला। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट इज -14/5। वो कैसा मिलेगा मुझे, 3 इंटू बी वेक्टर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर, सो 3x2 यानी 3x -2 इंटू 1 -2 अपॉन 3 + 2 होगा 5। सेकंड इक्वेशन देखिए, y कोऑर्डिनेट है 39/5, सो ये होगा 3 इंटू वाई प्लस 2 इंटू 6 होगा 12 अपॉन m प्लस n, 3 + 2 कितना होगा 5। एंड लास्ट z कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज 28/5, तो वो होगा 3z प्लस 2 इंटू 5 10, 2 इंटू z1 mz2 प्लस nz1 अपन m प्लस n कितना है 5। सो सिंपल है, सिर्फ एक्स वाई की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करने की है, तो 3x मिलेगा -12, यहाँ पे भी 5 कैंसल, 3y मिलेगा 27 और 3z मिलेगा 18। सो फ्रॉम दिस x इज -4, y इज 9 और z मिलेगा 6 and the coordinates of the point B are x, y, z -4 9 6. So -4 9 6 -4 9 6 is in this last option. So this was very simple, question number 8. Now this question is important, question number 9 and 10, very important question students. इसे आप जरूर एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। देखिए इसको मैंने बड़ा करके दिया है, ABC इज अ ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर P सर्कम सेंटर Q है, तो PA प्लस PB प्लस PC वेक्टर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें हम यूज करने जा रहे हैं, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर एंड सेंट्रोइड का रिजल्ट हम इसमें यूज करेंगे। ओके, तो रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट ऐसा है स्टूडेंट्स, किसी भी ट्रायंगल में पहले हम क्वेश्चन के तरफ जाते ही हैं। सो सियर ये ट्रायंगल है मेरा ABC। ओके, अब इसका एक मिनट, इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा अलग ढंग से बनाता हूँ। आई विल मेक, क्योंकि इसमें आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर आपको क्लियरली दिखाई देने चाहिए, तो मैं थोड़ा इस ट्रायंगल को मेरे हाथ से ऐसा बनाता हूँ। कैसियर थोड़ा मैं इसे लंबी साइड्स लेता हूँ एक, इस तरह से ये ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, सो दिस इज द ट्रायंगल ABC। अब P इज आर्थोसेंटर, तो आपको पता है आर्थोसेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड्स, तो ये है मेरा आर्थोसेंटर ऑन द अल्टीट्यूड। अब Q क्या है, सर्कम सेंटर, तो सर्कम सेंटर किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, तो यहाँ पे कहीं पे ये सर्कम सेंटर होगा Q। सो P इज द आर्थोसेंटर, Q इज द सर्कम सेंटर। ओके, तो PA वेक्टर प्लस PB वेक्टर प्लस PC वेक्टर कंसिडर किया। तो इस क्वेश्चन में मुझे ये ध्यान में रखने का है, PA प्लस PB प्लस PC कंसिडर कि पूछा है, तो लेट PA वेक्टर इज A वेक्टर, PA वेक्टर A वेक्टर, PB वेक्टर इज B वेक्टर, PC वेक्टर इज C वेक्टर, PQ वेक्टर इज Q वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू, ये पॉइंट यहाँ पे इजी बना देता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन P। तो मैंने पूरे पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू P कंसीडर किया है, यानी P को मैंने ओरिजिन कंसीडर किया। सो जैसा OA वेक्टर, फॉर एग्जांपल जैसा OA वेक्टर A वेक्टर होता है, या O क्या होता है, ओरिजिन। तो इस ओरिजिन को, P को मैंने ओरिजिन कंसीडर किया है, तो PA वेक्टर क्या होगा, A वेक्टर। अब यहाँ पे अगर B पॉइंट है तो PP वेक्टर क्या होगा, B वेक्टर। इस तरह से आई हैव कंसीडर्ड
P एज ओरिजिन और सभी पॉइंट्स के पोजीशन वेक्टर मैंने विथ रिस्पेक्ट टू P कंसिडर किए। अब इसमें इम्पोर्टेंट रिलेशन मुझे ये यूज करने क्या है कि दिस इज द सेगमेंट ज्वाइनिंग द अर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। तो इसको सेंट्रॉइड डिवाइड करता है इंटरनली इन द रेशियो 2:1। इसमें मैं थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ। सेगमेंट ज्वाइनिंग, इसे आप प्लीज नोट कीजिए। सेगमेंट ज्वाइनिंग अर्थो सेंटर, थोड़ा अच्छा लिखता हूँ। सेगमेंट ज्वाइनिंग अर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर is divided by centroid in the ratio। इसे आप नोट कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसका यूज आपने किया होगा। किसी भी ट्रायंगल में सेंट्रॉइड अर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को ज्वाइन करने वाली सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है इन द रेशियो 2:1। ओके, तो अब मेरी डायग्राम इस तरह से बन गई है। ये इस तरह से ये है, ये है पी क्या है मेरा अर्थो सेंटर, ये पी क्या है मेरा अर्थो सेंटर, और ये क्यू क्या है सरकम सेंटर, और ये जी क्या है सेंट्रॉइड। तो ये 2:1 में डिवाइड। ओके, तो यहाँ पे मैंने पी जी वेक्टर इज जी वेक्टर होगा। तो पहले हम इसका इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं, सो जी वेक्टर इज इक्वल टू 2q वेक्टर प्लस p वेक्टर अपॉन 2 + 1 3 इंटरनल डिवीजन। लेकिन p ओरिजिन है, p क्या है ओरिजिन, तो p वेक्टर क्या होगा 0। इसका रीजन है p इज ओरिजिन, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू p वो 0 वेक्टर हो जाएगा, बिकॉज मैंने p को ओरिजिन कंसिडर किया है। तो अब मुझे यहाँ से मिलेगा 3g वेक्टर इक्वल टू 2q वेक्टर। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज सेंट्रॉइड? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है a + b + c/3 इक्वल टू जी वेक्टर। अब ये 3g वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर इक्वल टू ये 2q वेक्टर मिला। अब ए बी सी वेक्टर क्या है, ए बी सी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक मैं क्या लिख सकता हूँ पी ए वेक्टर पी बी वेक्टर एंड पी सी वेक्टर, और पी क्यू को क्यू वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ पी क्यू वेक्टर। तो मिल गया मुझे रिजल्ट। अब ये तो पी ए वेक्टर प्लस पी बी वेक्टर प्लस पी सी वेक्टर इक्वल टू 2 टाइम्स क्यू वेक्टर क्या था पी क्यू वेक्टर। सो 2 टाइम्स पी क्यू वेक्टर इसका आंसर है, 2 टाइम्स पी क्यू वेक्टर। ओके, अब सेम रिजल्ट मुझे क्वेश्चन नंबर 10 में भी यूज करने का है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज है। ये भी क्वेश्चन आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज से मैंने उठाया है। ये क्वेश्चन भी सीईटी में पूछा जा सकता है। P इज द अर्थो सेंटर, Q सरकम सेंटर, वही रिजल्ट है, सिर्फ यहाँ पे G भी दिया है। तो QP वेक्टर को मुझे वो QG वेक्टर के फॉर्म में लिखने का है। तो मुझे एज एक्सप्लेन्ड इन दिस क्वेश्चन नंबर 9 अब भी मैंने बताया ही है। मैं अब जाता है, अब मैं ओरिजिन चेंज करूंगा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने विथ रिस्पेक्ट टू ये पिछला क्वेश्चन देखिए, इस यहाँ पे मैंने ओरिजिन P को कंसिडर किया था। अब इस क्वेश्चन में मैं Q को ओरिजिन कंसिडर करूंगा, Q को ओरिजिन कंसिडर करूंगा। सो लेट QA वेक्टर इज A वेक्टर, QB वेक्टर इज B वेक्टर, QC वेक्टर इज C वेक्टर, QP वेक्टर इज P वेक्टर, QG वेक्टर G वेक्टर इज G। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन Q। अब मैंने ओरिजिन कंसिडर किया है Q। अब मेरे पास तो डायरेक्ट रिजल्ट है, ये पता है मुझे। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन में मुझे ये फॉर्मूला यूज करने का है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स सेगमेंट ज्वाइनिंग द अर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इंटरनल इन द रेशियो 2:1। तो ये G इक्वल टू G वेक्टर इक्वल टू 2Q + P/3।
जी वेक्टर इक्वल टू जी वेक्टर इज इक्वल टू ओके, तो यही मुझे यूज करने का है। जी वेक्टर इक्वल टू 2 क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर बाई 3। बार चेक कर लेते हैं, 2q प्लस पी बाई 3 ओके, 2q प्लस, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन क्या है, ओरिजिन क्या है q, तो ये q वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि q क्या है, ओरिजिन है, तो इसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब मुझे क्या मिला है, 3g वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर, तो ये हो गया p वेक्टर इक्वल टू 3g वेक्टर, तो ये p वेक्टर क्या है, qp वेक्टर, देखिए ये qp वेक्टर है, और ये 3 और ये g वेक्टर क्या है, g वेक्टर क्या है, qg वेक्टर, qg okay, so qp vector equal to 3 times qg, qp vector equal to 3 times qg vector, so this is the option C correct. So students, these are the 10 important problems of this lecture on the section formulae. So आज मैंने सिर्फ 10 ही problems लिए हैं, इस पे one more lecture हम conduct करेंगे on the section formulae. So this point is also very important. So students, मिलते हैं next lecture में on the important problems of section formulae of the topic vector for MHT CET. So okay students, bye.